بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، عمران سیریز ناول کیلنڈر کلر بائی مظہر کلیم۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل جاسوسی دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ شہر کے شمالی حصے میں واقع مضافاتی کالونی کی ایک کوٹھی سے تھوڑے ہی فاصلے پر کار رک گئی۔ کار کا دروازہ کھلا اور پھر نمبر 1 باہر نکل آیا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا کوٹھی کی طرف بڑھنے لگا۔ ابھی وہ کوٹھی سے چند قدم ہی دور تھا کہ دیوار کی آڑ سے ایک نوجوان باہر نکل آیا۔ باس، وہ لوگ کوٹھی کے اندر ہیں، نوجوان نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ کیا تمہیں مکمل یقین ہے؟ نمبر 1 نے سرد لہجے میں کہا۔ یس باس، میرا سیکشن کوٹھی کی مکمل نگرانی کر رہا ہے، نوجوان نے جواب دیا۔ اوکے، تم اپنی نگرانی جاری رکھو، اب میں ہنٹنگ سیکشن کو سامنے لاتا ہوں، نمبر 1 نے کہا، اور پھر اس نے جیب میں ہاتھ ڈال کر ایک چپٹا سا باکس نکالا اور اس کے کونے کو انگوٹھی سے دباتے ہوئے کہنے لگا۔ ہیلو ہیلو، ہنٹنگ سیکشن، نمبر 1 بول رہا ہوں، اوور۔ نمبر 1 کا لہجہ بے حد سخت تھا۔ یس باس، ہنٹنگ سیکشن اسپیکنگ، اوور۔ دوسری طرف سے ایک آواز سنائی دی۔ کم آن دی آپریشن، کوٹھی پر حملہ کر دو۔ ڈاکٹر راشیل کے علاوہ جتنے افراد بھی ملیں، اگر زندہ قابو میں نہ آ سکیں تو انہیں ہلاک کیا جا سکتا ہے۔ میں گیٹ کے سامنے موجود رہوں گا، اوور۔ نمبر 1 نے کرخت لہجے میں کہا۔ اوکے سر، اوور۔ دوسری طرف سے پرجوش لہجے میں جواب دیا گیا۔ اوور اینڈ آل، نمبر 1 نے کہا اور کونے کو انگوٹھی سے دبا کر ٹرانسمیٹر واپس جیب میں رکھ دیا۔ پھر وہ تیزی سے مڑا اور سڑک کراس کر کے کوٹھی کے گیٹ کے سامنے ایک درخت کی آڑ میں رک گیا۔ کال ختم ہونے کے تقریباً 10 منٹ بعد ہنٹنگ سیکشن کے 4 کاریں تقریباً تیز رفتاری سے چاروں طرف سے برآمد ہوئیں اور کوٹھی کے گرد رک گئیں۔ ان میں سے سیاہ رنگ کے چست لباس میں ملبوس نوجوان باہر نکلے۔ ان کے ہاتھوں میں مشین گنیں تھیں اور پھر وہ کوٹھی کی طرف دوڑتے چلے گئے۔ کوٹھی کی دیواریں خاصی بلند تھیں، مگر وہ نوجوان شاید مکمل طور پر تربیت یافتہ تھے، کیونکہ وہ پرندوں کی طرح اڑتے ہوئے دیواریں پار کر گئے اور پھر کوٹھی کی مشین گنوں کی ریٹ ریٹ سے گونج اٹھی۔ بھاگتے ہوئے قدموں اور ریٹ ریٹ کی آوازوں نے پوری کالونی کے ماحول کو چونکا دیا۔ چنانچہ قریبی کوٹھی کی کھڑکیاں تیزی سے کھلنے لگیں، مگر کوٹھی کے گرد کھڑی ہوئی کاروں پر موجود بوشاروں کا مخصوص نشان دیکھتے ہی ان سب نے اپنی کھڑکیاں بند کر لیں۔ بوشاروں کے کام میں کوئی شخص مداخلت کا تصور بھی نہ کر سکتا تھا۔ نمبر 1 درخت کی آڑ میں کھڑا سکون سے ہنٹنگ سیکشن کے کام کے انجام کا انتظار کرتا رہا۔ چند لمحوں تک گولیاں چلنے کے بعد کوٹھی کے اندر خاموشی چھا گئی اور کوٹھی کا پھاٹک کھلا اور سیکشن کے 2 آدمی باہر نکل آئے۔ ان کے چہروں پر پریشانی کے آثار نمایاں تھے۔ نمبر 1 درخت کی آڑ سے باہر نکل آیا۔ کیا بات ہے؟ نمبر 1 نے سخت لہجے میں کہا۔ باس، کوٹھی بالکل خالی ہے، وہاں کوئی آدمی موجود نہیں ہے، آنے والوں میں سے ایک نے کہا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کوٹھی سے کوئی آدمی باہر نہیں آیا، پھر وہ خالی کیسے ہو گئی؟ نمبر 1 کے لہجے میں تعجب تھا۔ آپ خود چیک کر لیں باس، آنے والے نے مؤدبانہ لہجے میں کہا، اور پھر نمبر 1 ان کے ساتھ کوٹھی میں داخل ہوا۔ واقعی تمام کوٹھی خالی پڑی ہوئی تھی اور تھوڑی دیر بعد انہیں اس کی وجہ بھی معلوم ہو گئی۔ سیکشن کے آدمیوں نے وہ خفیہ سرنگ ڈھونڈ نکالی تھی جو کوٹھی سے 200 گز دور کھیتوں کے درمیان نکلتی تھی۔ اوہ، تو وہ ڈاکٹر راشیل سمیت نکل گئے؟ نمبر 1 نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا، اور پھر وہ منہ لٹکائے کوٹھی سے باہر آ گیا۔ اسی لمحے سیاہ رنگ کی ایک کار تیز رفتاری سے دوڑتی ہوئی اس کے قریب پہنچی اور بریکوں کی تیز آوازوں کے ساتھ ہی ایک جھٹکے سے رک گئی۔ کار میں سے ایک نوجوان پھرتی سے باہر نکلا اور اس نے کار فون کا ریسیور نمبر 1 کی طرف بڑھاتے ہوئے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ سر، آپ کی کال۔ نمبر 1 نے چونک کر ریسیور اس کے ہاتھ سے تھام لیا۔ ہیلو، نمبر 1 اسپیکنگ، نمبر 1 نے کہا۔ ڈیلنگر اسپیکنگ، میں نے ان ایشیائی مجرموں کا پتہ چلا لیا ہے۔ وہ ریڈگر اینڈ کمپنی کے ہیلی کاپٹر میں سوار ہو کر گئے ہیں۔ سینٹ اسپاٹ کالونی سے ان کے میک اپ میں جو لوگ گرفتار ہوئے ہیں وہ معمولی اچکے ہیں جنہیں کرائے پر حاصل کیا گیا تھا، ڈیلنگر نے پرجوش لہجے میں کہا۔ تو ڈاکٹر راشیل وہاں موجود نہیں ہے؟
नंबर 1 ने चौंक कर कहा, नहीं जनाब, सिर्फ एशियाई वहां पहुंचे हैं। इन्होंने अपना मेकअप तब्दील किया और फिर हेलीकॉप्टर में बैठकर चले गए, डेलिंगर ने जवाब दिया। यहाँ कार वाला डॉक्टर अशिल भी गायब हो गया है। वो एक खुफिया सुरंग के जरिए निकल कर भागा है, नंबर 1 ने कहा। मेरा ख्याल है जासूस कुत्तों को डॉज दिया गया है। असल डॉक्टर अशिल वही कार वाला था और ये एशियाई इसके ताकुब में गए हैं, डेलिंगर ने कहा। हो सकता है, मगर लेबॉर्ट्री से तो एशियाइयों ने डॉक्टर अशिल को बाहर निकाला था, फिर वो कार वालों के हत्थे कैसे चढ़ गए, नंबर 1 ने उलझे हुए लहजे में कहा। जहाँ तक मेरा ख्याल है, दरअसल यहाँ 2 पार्टियां सरगर्म अमल हैं, एक इन एशियाइयों की और दूसरी शायद कैलेंडर किलर की, डेलिंगर ने जवाब दिया। ओह, मगर कैलेंडर किलर का तो लेबॉर्ट्री में ही खात्मा कर दिया गया था, नंबर 1 ने जवाब दिया। हो सकता है कि वो असल कैलेंडर किलर ना हो, इसके कोई एजेंट वगैरह हो, डेलिंगर ने जवाब दिया। ओह, वाकई ये पहलू काबिल गौर है। इसका मतलब ये है कि डॉक्टर अशिल शदीद खतरे में है। तुम फौरन मेरे पास पहुंच जाओ, मैं रेडियो फ़ोन से हेलीकॉप्टर का पता चलाता हूँ, नंबर 1 ने कहा और फिर रिसीवर डॉक्टर की तरफ बढ़ा दिया। इसके बाद हंटिंग सेक्शन के इंचार्ज से मुखातिब हुआ, तुम लोग हमारे पीछे आओगे, और नौजवान ने मौजबाना तौर पर सर हिला दिया। नंबर 1 तेज तेज कदम उठाता अपनी कार की तरफ बढ़ता चला गया। अभी वो कार तक पहुंचा भी ना था कि एक और कार इसके करीब आकर रुकी और डेलिंगर इसमें से बाहर आ गया। आओ बैठो, नंबर 1 ने कार का दरवाज़ा खोलते हुए कहा और डेलिंगर घूमकर साथ वाली सीट पर बैठ गया। नंबर 1 ने ड्राइविंग सीट संभाली और फिर डैशबोर्ड का एक खुफिया खाना खोलकर इसका कोना हाथ से दबाया। दूसरे लम्हे एक छोटा सा रेडियो ट्रांसमीटर बाहर आ गया। नंबर 1 ने फुर्ती से एक नॉब घुमाकर एक फ्रीक्वेंसी सेट की और एक बटन दबा दिया। दूसरे लम्हे ट्रांसमीटर से आवाज़ निकलने लगी, हेलो बोशारो एयर कंट्रोल, ओवर, नंबर 1 स्पीकिंग। रेडगर एंड कंपनी का एक हेलीकॉप्टर फ़ज़ा में परवाज़ कर रहा है, इसका एयर ऑपरेशन नंबर बताओ। रेडगर अपनी कंपनी का हेलीकॉप्टर 06 पर उड़ रहा है, ओवर। क्या इस कंपनी का सिर्फ एक ही हेलीकॉप्टर है, ओवर। यस सर, इस कंपनी के पास हेलीकॉप्टर एक है, बाकी दवा छिड़कने वाले 10 छोटे जहाज़ हैं, ओवर, दूसरी तरफ से बताया गया। ओके, ओवर एंड ऑल, नंबर 1 ने कहा और बटन दबा दिया और फिर इसने दोबारा नॉब घुमाकर हेलीकॉप्टर की फ्रिक्वेंसी एडजस्ट करनी शुरू कर दी। चंद लम्हों बाद डायल पर एक सुर्ख रंग का नुक्ता चमकने लगा जो तेज़ी से मशरकी हिस्से की तरफ बढ़ा चला जा रहा था। ओह, हेलीकॉप्टर यहाँ से 20 मील दूर उड़ रहा है, नंबर 1 ने नुक्ते को देखते हुए कहा और फिर इसने कार एक झटके से आगे बढ़ा दी। चंद लम्हों बाद इसकी कार आंधी और तूफान की तरह आगे बढ़ी चली जा रही थी। इसके पीछे 4 कारें भी दौड़ रही थीं। नंबर 1 ने हाथ बढ़ाकर मखसूस सायरन ऑन कर दिया और जल्द अज जल्द वो हेलीकॉप्टर तक पहुंच जाना चाहता था, और सायरन की वजह से अब ट्रैफिक की रुकावट का खतरा भी बाकी नहीं रहा था। मुख्तलिफ सड़कों से गुजरने के बाद आखिरकार इन्हें वो हेलीकॉप्टर नजर आ गया और नंबर 1 ने सायरन बंद करके रफ्तार आहिस्ता कर दी। इसके चेहरे पर इत्मीनान के असर नमदार हो गए थे। क्या यही हेलीकॉप्टर वाले डॉक्टर अशील का नया पता जानते होंगे, नंबर 1 ने डेलिंगर से मुखातिब होकर कहा। आसार तो यही मालूम होते हैं, डेलिंगर ने सपाट लहजे में जवाब देते हुए कहा। ठीक है, देखा जाएगा, नंबर 1 ने कंधे उचकाते हुए कहा। इसकी नज़रें डायल पर चमकते हुए नुक्ते पर जम गईं। वो तेज़ी से मशरिक की तरफ बढ़ा चला जा रहा था। हेलीकॉप्टर इंतहाई तेज़ रफ्तारी से फ़ज़ा में परवास करता आगे बढ़ता चला जा रहा था। अचानक राफेल चौंक पड़ा। डायल पर मौजूद सुर्ख रंग का एक नुक्ता हरकत करने लग गया था। अरे, इमरान साहब को यहाँ से कहीं और ले जाया जा रहा है, राफेल ने कहा और सफदर भी चौंक पड़ा। हाँ, न जाने क्या चक्कर चल गया है, सफदर ने बड़बड़ाते हुए कहा। राफेल ने हेलीकॉप्टर की रफ्तार तेज कर दी। अब वो नुक्ते की सिमत देखकर अपनी हेलीकॉप्टर का रुख मोड़ रहा था और थोड़ी देर बाद इन्होंने सड़क पर दौड़ती हुई एक सुर्ख रंग की कार चेक कर ली। इसी कार में इमरान मौजूद था, क्योंकि इस कार के रुख बदलते ही नुक्ते की सिमत भी बदल गई थी। इसके पीछे 3 कारें और भी थीं। वो सब खासी तेज रफ्तारी से दौड़ती चली जा रही थीं। सुर्ख रंग की कार का रुख मशरकी सिमत वीरान पहाड़ियों की तरफ था। राफेल जानता था कि इन पहाड़ियों के अंदर एक वीरान किला मौजूद है। एक लम्हे के लिए इसने सोचा कि वो सुर्ख रंग की कार इससे पहले ही वहां पहुंच जाएगी, मगर फिर इसने अपना इरादा बदल दिया, क्योंकि हो सकता है ईमान को ले जाने वालों की मंजिल कोई और हो। सफदर, हेलीकॉप्टर का भी ताकुब हो रहा है, अचानक कैप्टन शकील की आवाज़ सुनाई दी। हेलीकॉप्टर का ताकुब?
राफेल और सफदर दोनों की ये बात सुनकर चौंक पड़े और इन्होंने फजा में इधर उधर देखना शुरू कर दिया। अरे फिजाई ताकुब नहीं, बल्कि 5 कारों का एक ग्रुप हेलीकॉप्टर का ताकुब कर रहा है। वो हेलीकॉप्टर के साथ साथ मुड़ रहे हैं। कैप्टन शकील ने मुस्कुराते हुए काफ़ी पीछे सड़क पर दौड़ने वाली कारों की तरफ इशारा करते हुए कहा, ओह, तुम कब से इन्हें चेक कर रहे हो? पिछले 5 मिनट से, कैप्टन शकील ने जवाब दिया। राफेल ने दूरबीन आंखों से लगाई और फिर इसका फोकस सेट करना शुरू कर दिया। अब इसकी नज़रें इन कारों पर जमी हुई थीं और फिर इसकी पेशानी पर उलझन के तासुरात उभरते चले गए। ये तो बुशारों की कारें हैं, और वो भी हंटिंग ग्रुप की, राफेल ने दूरबीन आंखों से हटाते हुए कहा। मेरा ख्याल है ये हमारे ताकुब से कैलेंडर किलर का ताकुब कर रहे हैं, सफदर ने बड़बड़ाते हुए कहा। कहीं ऐसा ना हो इनकी वजह से इमरान साहब का मंसूबा फेल हो जाए, हमें इनको अपने ताकुब से झटकना पड़ेगा, राफेल ने कहा। मेरे ख्याल में ऐसा नामुमकिन है, ये भी इसी अंदाज में ताकुब कर रहे हैं जिस अंदाज से हम कैलेंडर किलर का ताकुब कर रहे हैं, सफदर ने जवाब दिया। हाँ, मालूम ऐसा ही होता है, राफेल ने कहा, और फिर इसने अचानक हेलीकॉप्टर का रुख बदल दिया। अरे क्या हुआ, तुम वापस जा रहे हो? हाँ, इन्हें झटकने का एक ही तरीका है, कार और हेलीकॉप्टर की स्पीड से फ़ायदा उठाया जा सकता है, राफेल ने कहा और हेलीकॉप्टर की रफ्तार बढ़ा दी। अब वो वापस जा रहे थे। सफदर और कैप्टन शकील ने देखा कि बशारों की कारें इनके वापस मुड़ते ही रुक गईं और फिर वो भी मुड़ गईं। अब एक बार फिर वो हेलीकॉप्टर के पीछे थी। राफेल हेलीकॉप्टर की रफ्तार बढ़ाता चला गया। फिर जहाँ इसकी सड़क से एक बाई रोड निकलती थी, इसने हेलीकॉप्टर का रुख इस बाई रोड की तरफ मोड़ दिया। होशियारों की कारें भी इस बाई रोड पर मुड़ गईं। जब कारें इस बाई रोड पर काफ़ी फासले पर पहुंच गईं तो राफेल ने एक बार फिर हेलीकॉप्टर का रुख बदल दिया और फिर शॉर्ट क्रॉस करते हुए वो पहाड़ियों के ऊपर से होता हुआ दोबारा इन्हें वीरान पहाड़ियों की तरफ बढ़ता चला गया। सफदर जानता था कि अब होशियारों की कारों को दोबारा इन तक पहुंचने के लिए एक तवील चक्कर काटना पड़ेगा। अब डायल पर चलने वाला नुक्ता रुक चुका था। वो इसी वीरान किले में गए हैं, राफेल ने नुक्ते को गौर से देखते हुए कहा। हमें फौरन करीबी जगह उतार दो, इमरान साहब किसी भी लम्हे खतरे में गिर सकते हैं, सफदर ने बेचैन होते हुए कहा। हेलीकॉप्टर जल्द ही वीरान पहाड़ियों पर पहुंचकर एक खाली जगह उतर गया और फिर मंसूबे के मुताबिक सफदर और कैप्टन शकील तेजी से नीचे उतर गए। डॉक्टर राशेल हेलीकॉप्टर में ही रह गया। राफेल ने हेलीकॉप्टर दोबारा फजा में बुलंद कर दिया। सफदर और कैप्टन शकील तेजी से इस वीरान किले की तरफ दौड़ते चले गए। वो एक पहाड़ी की दामन में मक्खी जितना बड़ा नजर आ रहा था। इनके अंदाजों में लापरवाही थी, हालांकि नीचे से इन्हें बआसानी देखा जा सकता था। इमरान की जब आँख खुली तो इसने अपने आप को एक कमरे में पाया। वो एक सतून से बंधा हुआ था और 4 मुसल्लह मशीन गन बरदार इसके सामने मशीन गनें उठाए खड़े थे। हाँ तो मिस्टर, अब तुम बताओ कि डॉक्टर राशेल कहाँ है? इसी करख लहजे वाले ने कहा जिसने अपना नाम कैलेंडर किलर बताया था। तुमने अपना नाम कैलेंडर किलर बताया था ना? इमरान ने इसी तरह मुतमईन लहजे में कहा। हाँ, मैं कैलेंडर किलर हूँ, कैलेंडर किलर ने जवाब दिया। तुम कैसे कैलेंडर किलर हो? कैलेंडर के एक महीने को नहीं ढूंढ सकते, जबकि मुझे देखो, मैंने इसे बड़ी आसानी से ढूंढ लिया, इमरान ने कहा। मगर तुम्हें इससे क्या दिलचस्पी हो सकती है? तुम एशियाई हो, वो जर्मन नजाद, कैलेंडर किलर ने इस बार उलझे हुए लहजे में कहा, और इमरान समझ गया कि वो इसका मेकअप साफ कर चुके हैं। मैंने तुम्हें बताया तो है कि मैं कैलेंडर मेकर हूँ, इमरान ने जवाब दिया, और फिर इससे पहले कि कोई इसका जवाब देता, बाहर से कदमों की आवाज़ें उभरी और 4 मशीन गन बरदार 2 आदमियों को हिरासत में लिए अंदर दाखिल हुए। बॉस, ये इसके साथी मालूम होते हैं, ये एक हेलीकॉप्टर से उतरे हैं, हेलीकॉप्टर वापस चला गया है, एक मशीन गन बरदार ने कैलेंडर किलर से मुखातिब होकर कहा। ओह, तो ये यहाँ भी पहुँच गए, इन्हें भी सतूनों से बांध दो, कैलेंडर किलर ने उलझे हुए लहजे में कहा, और फिर इसके हुक्म पर सफदर और कैप्टन शकील को भी सतूनों से बांध दिया गया। वो बेखबरी में मारे गए थे। मशीन गन बरदारों ने इन्हें अचानक ही छाप लिया था। बॉस, इन्हें जिंदा रखने की क्या ज़रूरत है? इन्हें गोली क्यों ना मार दी जाए? कैलेंडर किलर के एक साथी ने बॉस से मुखातिब होकर कहा। जब तक डॉक्टर राशेल का पता ना चल जाए हमें इन्हें जिंदा रखना होगा, कैलेंडर किलर ने जवाब दिया। इसकी आंखों में उलझन के तासुरात थे। वो चंद लम्हे दांतों से होंठ काटता रहा, फिर इमरान से मुखातिब हुआ। देखो एशियाई, हमें तुम लोगों से कोई प्रकाश नहीं है, हमें सिर्फ डॉक्टर राशेल चाहिए, इसलिए बेहतर यही है कि तुम इसको हमारे हवाले कर दो। हम वादा करते हैं कि तुम्हें आज़ाद कर देंगे, वरना दूसरी सूरत में तुम अपनी जानों से हाथ धो बैठोगे। डॉक्टर राशेल को तो बहरहाल हम ढूंढ ही निकालेंगे।
कैलेंडर किलर का लहजा इस बार कदरे नरम था। मुझे कोई एतराज़ नहीं है, मगर मैं असल कैलेंडर किलर से बात करना चाहता हूँ। मैं डॉक्टर राशेल का पता सिर्फ इसे ही बताऊंगा। असल कैलेंडर किलर? क्या मतलब? कैलेंडर किलर तो मैं हूँ, कैलेंडर किलर ने चौंक कर कहा। इसकी आंखों में उलझन के तासुरात कुछ और बढ़ गए थे। तुम अपने साथियों को तो चक्कर दे सकते हो, मगर मुझे नहीं। मैं जानता हूँ कि तुम असल कैलेंडर किलर नहीं हो। असल कैलेंडर किलर को सामने ले आओ, इसके बाद मुझे डॉक्टर राशेल का पता बताने में कोई यार नहीं होगा। इमरान ने संजीदा लहजे में कहा। ख्वामखा बात बढ़ाने की कोशिश मत करो, सीधी तरह डॉक्टर राशेल का बता दो, जिसे तुम लेबोरेटरी से उड़ा लाए हो, कैलेंडर किलर ने इस बार गुस्से से धाड़ते हुए कहा। बॉस, मेरा ख्याल है वक्त ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। इसके साथियों को यहाँ छोड़ा कर जाने वाला हेलीकॉप्टर हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। डॉक्टर राशेल को ढूंढने के लिए हमें नए सिरे से मनसूबाबंदी करनी पड़ेगी। अचानक कैलेंडर किलर के एक साथी ने बॉस से मुखातिब होकर कहा। ठीक है, मैं भी इसी नतीजे पर पहुंचा हूँ। अब हमें मजीद रिस्क नहीं लेना चाहिए, कैलेंडर किलर ने अचानक फैसला कुन लहजे में जवाब देते हुए कहा। इसका यह फिक्र सुनते ही सामने खड़े हुए 4 मशीन गन बरदार एकदम चौकन्ने हो गए। इनकी उंगलियां ट्रैगरों पर पहुंच गईं। वो किसी भी लम्हे गोलियां चलाने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुके थे। कैलेंडर किलर एकदम पीछे हटने लगा। वो शायद मशीन गन बरदारों के लिए जगह खाली करना चाहता था। इसके साथी भी इसके साथ ही पीछे हटते चले गए। ठीक है, इन्हें गोलियों से छलनी कर दो। अचानक कैलेंडर किलर ने मशीन गन बरदारों से मुखातिब होकर कहा। इमरान अब भी बड़े इत्मीनान से सतून से बंधा खड़ा था। इसके लबों पर वही अजली मुस्कुराहट तारी थी। फिर मशीन गन बरदारों की उंगलियां ट्रैगरों पर सख्त होती चली गईं और दूसरे ही लम्हे वो हॉल नुमा कैमरा फायरिंग की तेज आवाज़ों से गूंज उठा।